ہمارے اس ضلع کے ایک انٹلیکچوئل پرسنالٹی جنہوں نے جو ہے تو ماشاء اللہ بہت سارے طلباء میں ایک ایسی چیز پیدا کی کہ وہ اپنی زندگی بھر جو ہے تو اس کو بھول نہیں سکتے. ان کو ایک اچھا مزاج پہنچایا اور اپنی خدمات کے لیے وہ جانے جاتے ہیں. میں زوردار تالیوں کے ساتھ شاخا کے صدر مدرس سید حسن سر کے لیے سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور پینل ڈسکشن کے لیے تو ہمارے پاس تشریف لائیں. ساتھ ہی اسٹیٹ لیول پر بارہا کام کرنے والے میرے دوست غلام نبی صاحب ماشاء اللہ بہت ہی بہترین انداز میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور جیسا کہ چوہان سر نے کہا تھا کہ پوری جو اس کا جو سیٹ اپ ہے پوری ترتیب دینے میں چالیس سر کا ہی ہاتھ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میرے جو ساتھی ہیں میرے ساتھ ہمیشہ جو ہے تو لاسٹ ٹائم پہ رہے, میں بہت ہی ادب جو ہے تو منہا سر سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اس پینل ڈسکشن کا حصہ لیں. آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں زوردار تعلیم کے ساتھ. مختصر ہے صرف جو ہے کچھ سوالات پر مبنی ہیں. اور جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہی ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کو اگر ہمیں پتہ ہے وہ چیز لیکن کسی اور سے سنیں تو اس کے ذہانت کے حساب سے جو ہے تو بہت اچھی اچھی چیزیں ہمیں سامنے آتی ہیں اور بہت کچھ ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں. آئیے سید اسد سر یہاں پر موجود ہیں, میں اسد سر کا استقبال کرتا ہوں, ساتھی غلام جاوید صاحب کا اور میرے ہم سر منہا سر کا. شروعات کرتے ہیں. سید اسد سر ماشاء اللہ سے آپ کی جو تعلیمی کارکردگی رہی خدمات رہی بہت زیادہ رہی. مجھے آپ سے پوچھنا ہی ہے اردو ریڈنگ مطالعے پروگرام کے تعلق سے کہ اردو مطالعے پروگرام سے مزید کن مقاصد کا حصول ہونا چاہیے, کیونکہ صبح سے جو ہے تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مطالعے پروگرام شروع ہے اور اس کتاب کے تحت جو ہے تو یعنی کتابچے کے تحت ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں پیش کی ہیں, لیکن ہو سکتا ہے سید اسد سر جو ہے تو ہمیں اور کچھ جو ہے تو ہم رہنمائی کر سکیں. سید اسد سر سے گزارش ہے کہ وہ بتائیں کہ مزید کن حصول کا جو ہے تو کن مقاصد کا حصول کس سے ہو سکتا ہے. سب سے پہلی بات یہ دیکھیے, جیسا اس سے پہلے میں یہاں کھڑے ہو کر میں نے کچھ بات کہی تھی تو اس میں ایک چیز یہ تھی کہ مطالعہ جو ہے تو انسان کو اس کی جو چھپی ہوئی صلاحیت ہے, انسان سب سے پہلے خود کو نہیں پہچانتا وہ کیا ہے, اور ایک واحد ایک چیز جو سب سے پہلے انسان کو خود سے روشناس کراتی ہے وہ ہے مطالعہ. مطالعہ کرنے سے انسان سب سے پہلے دنیا کو تو وہ جان جاتا ہے, دنیا کو سمجھ لیتا ہے, لوگوں کو پرکھتا ہے, لوگوں سے میل جول بڑھانے میں وہ معاون و مددگار تو ہو سکتا ہے مطالعہ. ساتھ ہی ساتھ خود کو پہچاننے میں جو کام کوئی چیز انسان سے کروا سکتی ہے وہ ہے مطالعہ. مطالعے سے انسان سب سے پہلے تو خود کو پہچانتا ہے کہ میں کیا ہوں اور میرے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سی صلاحیتوں کو رکھا اور دنیا کیسی ہے, دنیا کو برتنے کا اس سے جو ہے مطالعہ کام کرواتا ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے طلبا زیرو ہے, ہم ہمیشہ جو ہے تو دنیا کی اور ہم خود بھی سب سے پہلے ہم کو اپنے آپ کو نکالنا ہوگا اس بات کے لیے کہ ہمارے طلبا زیرو نہیں ہوتے, ہمارے طلبا میں بہت ساری صلاحیتیں. مطالعہ جو ہے تو ان کو سوچنے پر ان کے اندر چھپی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا مطالعہ. اب ہم 26 جنوری یا یوم آزادی یوم جمہوریہ کے موقع پر اسکول میں ثقافتی پروگرام وغیرہ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی تیاری کرانے کے بعد ہمارے خاص کر کے الحمدللہ مسلم بچے اتنی دیری کرتے ہیں کہ وہ اسٹیج پر آ کے بہترین پرفارمنس کر کے چلے جاتے ہیں, اچھے سے اچھا جو ہے تو اداکاری کرتے ہیں, ڈائلاگ بولتے ہیں یا اپنے دل میں جو بھی کام ہے وہ کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہمارے پاس صلاحیتوں کی فقدان نہیں ہے, صلاحیتیں بہت ہیں, لیکن جہاں تقریر کرنے کا ہے, جہاں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا ہے, جہاں کوئی تحریری کام کرنے کا ہے تو ہمارے طلبا وہاں ڈگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. کلاس کے چنندہ چند بچوں کو چھوڑ کر 2-4 جو ہر جماعت میں طلبا ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر باقی معاملہ طلبا اپنے خیالات کا اظہار ڈھنگ سے نہیں کر سکتے. اور سر آپ نے جو بات کہی ہے صلاحیتوں کی تو ماشاءاللہ طلبا کے اندر تو ہے ہی, لیکن ہم جب سے کام کر رہے ہیں لگ بھگ مجھے بھی 17 سال ہو چکے یہاں پر, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ٹیچرس کے اندر بھی صلاحیتیں بہت ساری ہیں لیکن بروئی کار نہیں آ رہی. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیوں جیسا ہم کو پلیٹ فارم نہیں مل رہا کوئی
या कोई प्लेटफॉर्म होना ही जरूरी है क्या? नहीं, प्लेटफॉर्म तो सबसे बड़ा अल्लाह ताला ने हमको मैसर करके दिया। हमारा स्कूल सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे स्कूल, हमारे जमातें, उससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म तो कोई और है ही नहीं। और सबसे बेहतरीन मैसेज आपको दिया अल्लाह ताला ने, वो है आपके तालिब इल्म। आप उनको चाहे सही पढ़ाओ, गलत पढ़ाओ, जैसा भी पढ़ा ले, लेकिन वो आप उनके लिए आइडियल। तो यहाँ पर अगर कोई उस्ताद मुताले से और स्टडी करके अपने सब्जेक्ट में जो है तो महारत पैदा करके जब दरसो तदरीस का काम करेगा, तो इंशाअल्लाह वो जो असरात उसके देर पा रहेंगे जहनों में। क्या वजह है कि हाँ आज तक हमको, अब मैं तो, आप तो सब छोटे होंगे मेरे से, लेकिन मेरी उम्र में, यानी मैं आज 51 ईयर्स का हूँ, आज भी मुझे याद है कि चौथी क्लास में हमारे मुंशी सर हुआ करते थे मरहूम, उन्होंने उर्दू की एक नज़म ऐसी तरन्नुम में पढ़ाई थी कि वो नज़म मुझे आज भी ज़बानी याद है। और आप यकीन जानिए कि उसके बाद मैंने दोबारा वो नज़म नहीं पढ़ी थी, लेकिन वो उनके पढ़ाने का तासुर था। तो सबसे बेस्ट आइडियल पर्सनालिटी बच्चों के लिए तो असातिज़ा है। और ये कहना है कि हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता या हम कहाँ अपनी सलाहियतों को बरोकार लाए, तो ज़रूरी नहीं है कि हम ज़माने भर की वाहवाही बटोरते फिरें। सबसे बड़े हमारे लिए हमारे तलबा, अगर उन पर हम मेहनत करके टीचिंग के फ़राइज़ अंजाम देंगे तो वो सबसे बड़ा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ऐसा मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यकीनन प्लेटफॉर्म की हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग प्लेटफॉर्म जो है तो बढ़ाने वाले लोग हैं। एक सवाल ये है कि क्या इस प्रोग्राम की म्याद खत्म होने पर से रखते हैं गुलाम जय साहब, आप तो स्टेट लेवल पर हमेशा बारहा जा रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, क्या इस प्रोग्राम की म्याद खत्म होने पर इसकी अहमियत खत्म हो जाएगी? क्या इसको दोबारा चलाना पड़ेगा या ऐसी कुछ नौबत आएगी क्या भाई ये चलाना ही पड़ेगा, या फिर बाद में कुछ ऐसे के बाद सब लोग भूल जाएंगे इसको? नहीं, यूनिसेफ जो है ना, सिर्फ यूनिसेफ का बाज़ाब्ता सिर्फ 2 साल का फंडिंग है, उसके बाद ये प्रोग्राम यूनिसेफ नहीं चलाएगी। अगर नहीं, लेकिन यूनिसेफ अगर ये सोच रहा है कि भाई ये सिर्फ 2 साल ही चलना है, तो फिर इतना खर्च करके कोई मतलब? जी, तो उसी में मैं असल में जवाब दे रहा था कि यूनिसेफ तो 2 साल चला रहा है, उसके बाद रीजनल अथॉरिटी ऑफ एकेडमिक अथॉरिटी जो है राह है, तो वो अगर ये जायज़ा उसको लगे, जिस तरह के अभी जायज़ा लिया जा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू रीडिंग प्रोग्राम को रिस्पांस मिल रहा है। और तीसरी चीज़, असल में शुरुआत यूनिसेफ भी, राह भी और हम लोग भी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि तलबा को एक शुरुआत दी जाए एक प्रोग्राम की, वरना जैसा कि सर ने कहा कि किसी को राग़िब करने की ज़रूरत ना हो, यानी असातिज़ा भी और तलबा भी आगे चलकर वो अपनी लाइब्रेरी को संभालें और कंटिन्यू, चाहे वो प्रोग्राम हो, उर्दू रीडिंग प्रोग्राम हो ना हो, लेकिन वो इस्तेफ़ादा करते रहे, लाइब्रेरी से इस्तेफ़ादा करते रहे। लाइब्रेरी से मुताल्लिक़, किताब से मुताल्लिक़ जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है प्रोग्राम हम स्कूल की सतह पर भी, तालुक़े की सतह पर भी, और अगर मुमकिन हो तो जिस तरह अभी सर ने एक बेहतरीन प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह इस रीडिंग प्रोग्राम से मुताल्लिक़ जो हमको तजवीज़ किया, जिसकी राय दी, तो वो एक बेहतरीन प्रोग्राम, इस तरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम पैदा हो। तो सिर्फ इस असर, यानी इस अरसे तक, यानी एक पिछला साल हुआ, एक इस साल, तो वैसा नहीं है। ये समझिए कि हम थीम समझिए कि हो सकता है कि अगला थीम हमारा कुछ और हो, जैसे आओ किताबों से दोस्ती करें, तो ये किताबों से दोस्ती 1 साल की नहीं होगी, बल्कि ये दोस्ती उनकी ताउम्र, जब तक वो रहेंगे, जब तक कि वो बूढ़े होंगे, जॉब पर रहेंगे, उसके बाद भी चलते रहे। ये इस प्रोग्राम, रीडिंग प्रोग्राम का मकसद है। मेरा सवाल पूछने का मकसद यही था कि इसको एक हिस्सा बना दिया जाए तालीम का, है ना। एक अगला सवाल है हमारे मिनान सर के लिए कि तलबा में किस तरह से मुताले की दिलचस्पी को फ़रोग़ दिया जा सकता है? मिनान सर, दिलचस्पी के ताल्लुक से तो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, हमारे पास 2 किस्म के तलबा हैं, एक शहरी तलबा और एक देहाती तलबा। हमको पहले दोनों के मिजाज के एतबार से काम करना होगा कि जो शहरी तलबा है उनको हर चीज़ की सहूलत मैसर है ना, लेकिन उनको एतबार से उनको तैयारी करना होगा कि इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। खुसूसन जो हमारे स्कूल है वो देहातों में, तो वहाँ पे पढ़ने का माहौल नहीं रहता और ना पढ़ने का मिजाज रहता है, तो इस ताल्लुक से हमको वहाँ पे कुछ किस्म के पहले से पेशगी तैयारी करनी होगी। मिसाल के तौर पे कि हम अपने गांव के अंदर एक शायरी कभी सुना होगा आपने कि हमेशा 15 अगस्त या 26 जनवरी को रैली निकालते, तो क्यों ना एक ऐसी रैली निकाली जाए जो सिर्फ पढ़ने के ताल्लुक से हो, कि पढ़ने के ताल्लुक से एक रैली गाँव में निकाली जाए कि भाई चलो हमको मुताला करना है, पढ़ाई करना है, एक वो तरकीब है। जिस तरह से हमारे पास साल के आखिर में जो फूड मेला होता है, तो क्या ऐसा नहीं होता कि हम साल में 1 या 2 मरतबा किताबों का मेला लगाए,
और मुख्तलिफ किस्म की किताबें जो है लोगों के सामने पेश करें, जहाँ पे उनके सरपरस्त भी हो, तलबा भी हो, और उनको वो चीज़ें मुहैया कराएं। तो ये जब उनको वो चीज़ें हम मुहैया कराएंगे तो उनके अंदर राग़िब होंगे, क्योंकि वो चीज़ें उनके पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो इस तरफ राग़िब नहीं है। तो हमको वो चीज़ें पेश के तौर पर उनके पास तैयार करना होगा, वो चीज़ें बनाना होगा, ताकि वो उससे मुतासिर हो और जो उनको पढ़ने की तरफ राग़िब हो। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि जब वो पढ़ने की शुरुआत करें तो उनकी हौसला अफजाई जरूरी है कि भाई किस नौयत की पढ़ रहे हैं। जैसे हर एक का मिजाज अलग होता है, हर एक की जो पसंद अलग होती है, तो उस एतबार से उसके अंदर भी हम लाइब्रेरी के अंदर मवाद को रख सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। एक सवाल मेरा गुलाब जावेद सर से है कि लाइब्रेरी के ताल्लुक से तो आपने जैसा भी बिना सर से सुनाई कि लाइब्रेरी इस तरह से कर सकते हैं, फंडिंग के ताल्लुक से जो कहे कि स्कूल में जैसा फंड्स आते रहते हैं तो बस लाइब्रेरी का फंड इतना, लाइब्रेरी की किताब इतना खरीदो, तो फिर किस तरह से जो है और फंड्स हम जमा कर सकते हैं? और क्या किताबों की लाइब्रेरी, किताबों की लाइब्रेरी एक होना ज़रूरी है, स्कूल में होना चाहिए या फिर हर क्लास में होना चाहिए? इस ताल्लुक से क्या कहेंगे आप? जी, असल में उर्दू रीडिंग प्रोग्राम 2.0 में जो है हम सबसे पहला हमारा जो सेशन है वो यही था कि रीडिंग स्पेस हमको बनाना। ज़रूरी नहीं कि एक कमरा अगर है तो पीछे 2 किले ठोक, जैसे मेरे पास हम यानी मेरे स्कूल में ये किया गया है कि हर क्लास लाइब्रेरी, पीछे 2 किले यानी 3 जगह किले मारकर हमने रस्सी लगा दिया, उस रस्सी पर जो है हमने किताबें रखी। टेबल है आप एक, उस पर आप किताबें रख लीजिए, आपकी लाइब्रेरी हो। वाचन कोपरा आपने सुना है, उसका आप इस्तेमाल करें। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक लकड़ी की या किसी और चीज़ की अलमारी ही हो और उसी में किताबें रखी जाए, है ना। आप किसी भी सूरत में जो है आपके पास किताबें, और वो भी बच्चों के मयार के हिसाब से। अब रही बात जो सवाल है फंडिंग का, तो देखिए अगर आपकी शिक्षण व्यवस्थापन समिति है देहातों में या स्कूल कमेटी है शहरों में, नगर सेवक है, ग्राम पंचायत सदस्य है, अगर उसको ये कहे कि आप सिर्फ 1000 रुपये दीजिए, हम आपके नाम से जो है या फिर उसी के जरिए से जो है किताबें लाएंगे और उसी के हाथ से जो है वो डोनेट कराकर 1-2 तस्वीरें लेकर शिक्षण शाला व्यवस्थापन समिति पर डालें। इस तरह के मुख्तलिफ जराए हमें किया है। अच्छा, अगर आप किसी आप बोला सर कि भाई वो लोग ही पैसे मांगने आते हैं हम लोगों को, जी नहीं क्या वो देंगे? नहीं, असल में ये है ना हमारी सोच है। अच्छा, आप जाइए, मैं बोल रहा हूँ हमारे पास हमने आमदार साहब को बात की है, वो बोले आपको कब और कौन सी किताबें चाहिए। मदन कदम सर यानी उनके भांजे, तो उन्होंने कहा कि भाई इनको इन्हों जितने मांग रहे उतने पैसे दो। हम कम से कम उनको 10,000 आमदार रुपये या किसी आप खासदार से अगर आपके शहर में आ जाए तो उस वक्त उसको एक आपके स्कूल के लिए आप पूरा मतलब बेड़ा मत उठाइए, आपके सिर्फ स्कूल की हद तक, और वो पॉसिबल है। और सर ने सबसे अहम चीज़, सबसे पहली सीढ़ी सर ने जो सवाल कहा कि हम अपने एतबार से अगर मेरे स्कूल पर 5 टीचर है और वो 5 टीचर 200 रुपये दे दें तो 1000 रुपये में हमें अच्छी खासी किताबें हमारी आ जाती हैं। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि पहले मेंटेलिटी बने कि मैं लाइब्रेरी कायम करना चाहता हूँ, तो उसके बाद सारे रास्ते आप जो है फ़ोन करके इस समय के चौहान सर भी अल्हम्दुलिल्लाह या हम लोग भी हैं तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, या किसी से मुलाकात करना हो, असद सर है जैसे बसमत में तो आप असद सर को साथ लीजिए, आपके स्कूल के लाइब्रेरी के लिए किसी से मुलाकात आपको अगर करना हो तो बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि इंशाल्लाह किताबों के लिए कम से कम, दूसरी चीज़ों के लिए ना सही नहीं, किताबों के लिए लोग आपको फंडिंग करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल मेरा असद सर के लिए कि देखिए हर बुध और शनिचर कोई प्रोग्राम चल रहा है, 1 घंटा दे रहे हैं हम लोगों को। अब ऐसा होता है कि भाई कभी जो है तो कोई चीज़ आ जाती तो यानी उसमें हमारा टाइम चला जाता, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पीरियड्स हम लोग लेते हैं। अब क्या इन प्रोग्राम के चलाने से 1-1 घंटा जब ज़ाया होगा, यानी ज़ाहिर से तो ही कहेंगे 1-1 घंटा जब हमारा जब चला जाएगा तो निसाबी तालीम मुतासिर होगा कैसे, और फिर क्या ये टीचर्स के लिए बोझ है? टीचर के लिए तो हर वो काम एक्स्ट्रा करिकुलम से रिलेटेड हमारे गैर निसाबी जितने भी काम आते हैं, अब मैं तो 28 साल के तजुर्बे को बता रहा हूँ, तो वो नहीं लगता। असल में बात ये है कि जैसा बहुत सारी बात हुई इसके ऊपर कि इल्म इससे हासिल होगा, मुताला ही जो बढ़िया है ये रिलेटेड ही है, तो गैर जरूरी तो ये दो एक सिक्के के 2 रुख हैं। जी काम बढ़िया है, इससे फायदे होंगे, और न सिर्फ तलबा के, अगर असातिज़ा में भी मुताले का शौक फिर से जाग जाए तो वो खुद अपनी गैर दर्सी किताबें पढ़ के या हवाला जाती कुतुब पढ़कर अपने इल्म में इजाफा कर सकता है। ये एक सिक्के का एक रुख है, तलबा का भी और असातिज़ा का भी फायदा है, ठीक है। दूसरा रुख ये भी है उसका कि भाई हम जहाँ कपड़ों की भरमार
अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही, मगर हमारे में से आधे लोगों का इस बात पर ध्यान था कि वो अपार आईडी के वास्ते वहाँ जाके बात करनी है। और यकीन जानिए मैं गया नहीं आपकी ट्रेनिंग छोड़कर, यहाँ से मुझे भी कुछ मिल जाएगा। जी, तो हमारे जहनों में ये है सर, इतने सारे जो है तो एक्टिविटीज, इतने सारे प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम की टाइमिंग भी उसमें टाइम ड्यूरेशन लिमिटेशन रहती, वो टाइम पे हमको करके देना होता है। तो उससे ये चीज़ और एक एडिशनल चीज़ कहीं ना कहीं निसाबी तालीम का डिस्टर्बेंस तो होता ही है, ये सही है, लेकिन जहाँ निसाबी तालीम का ज़ाया करना हमको नज़र आता, तो वहीं दूसरी तरफ इस मुताले से तलबा के अंदर जो खूबियाँ पैदा होंगी उसका अंदाज़ा हम और आप नहीं लगा सकते। ये बहुत बड़ा सरमाया हमारा तलबा। और दूसरी बात, जवान सर यहाँ बैठे हैं, जवान सर ने अपने भाषण में बताया था कि इस साल उन्होंने जो है तो एक लास्ट में कोई प्रोग्राम देने वाले हैं। तो सर एक हम जो है तो हमारी संगठन है अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संगठन, उसके तरफ से मैं एक छोटा सा एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा था कि हम संगठन की तरफ से इस साल इस उर्दू रीडिंग प्रोग्राम के तहत पूरे जिले के टीचर्स को दावत दे रहे हैं कि वो खुद कोई एक कहानी, कोई एक मजमून ऐसा लिखे जो साइंस, मैथ, टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, या उसमें कुछ पहलू उसका निकलता हो। आप अपनी सलाहियतों को देखिए, आपके पास टाइम है, और हर टीचर से एक मजमून या एक कहानी जमा करके साथ में अपने क्लास की जो बेस्ट स्टूडेंट है या जो बेस्ट स्टूडेंट है आपके स्कूल में से, उसकी कोई तहरीर करदा कहानी या नज़्म, ऐसी एक किताब हम पब्लिश करेंगे सर। उसकी 500 कॉपी जिले के हर स्कूल तक, हर टीचर तक हम उस सिंपोजियम में उसका ओपनिंग करने का इरादा रखते हैं। तो आपको यह दावत दी जाती है कि आप अपनी सलाहियतों को उजागर कीजिए, आप कोई एक कहानी अपने तौर पर लिखिए और अपने एक बेस्ट स्टूडेंट से एक लिखवाने की उसको तरगीब दीजिए कि जिसमें कुछ ना कुछ नयापन हो, कुछ अच्छा वो लिखे, चाहे वो शायरी हो, कहीं बच्चों की नज़म हो, कोई मजमून हो, कोई कहानी हो, कोई भी चीज़ आप लिखिए, उसका हम बाकायदा अपने ग्रुप्स पर ऐलान करेंगे, आपके स्कूल तक लेटर आएगा संगठन की तरफ से, और आपकी तहरीर करदा वो चीज़ उस किताब में पब्लिश की जाएगी, और उसके 500 कॉपी मिनिमम जितने स्कूल में असातिज़ा है उसका एक रिकॉर्ड निकाल कर सोसाइटी प्लस जिला परिषद दोनों स्कूल में, उर्दू स्कूल में जितने टीचर्स है सबको एक एक कॉपी फराहम करने का हम इंशाल्लाह वादा करेंगे। बहुत ज़बरदस्त। देखिए सुबह में ये ख्याल आराई हुई थी इसके ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह एक शाम होते होते जो है तो उसके रिजल्ट निकल गया। जोरदार तालियां सर के लिए, लेकिन बहुत ही एक बड़ा काम अपने से ले लिया उन्होंने, और यहाँ पर जो है तो असद सर ने अपने ख्याल ज़ाहिर किए, गुलाम जवेद सर ने ख्याल ज़ाहिर किए, माशाल्लाह से मिनाज सर भी हमारे साथ इस पैनल का जो है तो हिस्सा रहा। मैं सभी का जो है तो मशकूर हूँ, और इस पैनल डिस्कशन जो है तो शुक्रिया के साथ यहाँ पर खत्म करता हूँ।